Under the visionary leadership of Dr. Himani Chaursia, co-convener, the Institute Innovation Cell of CMP Degree College, Prayagraj, organized the Interinstitutional Startup Competition and Reward Best Competition from 9th to 11th September 2025. The event nurtured entrepreneurial thinking and gave students and research scholars a platform to pitch their innovative startup ideas. Round Pushpin Day 1 began with an orientation session, followed by 67 participants presenting their startup pitches. They received valuable feedback, and the day concluded with a valedictory session appreciating their efforts. Round Pushpin on Day 2, shortlisted teams refined and presented their ideas before the judges. Out of 23 teams, 11 were felicitated. Winners included: First prize, Team Voice Blocking and Team Unit-Wise Prepaid Electricity. Second prize, Team Self-Healing Concrete and Team Piezoelectric. Third prize, Team Ecoleather and Team Smart Fridge, along with fourth and consolation prizes. These teams advanced to the grand final at United Institute of Technology, NANI. Round Pushpin Day 3, the grand final. Jointly organized with ESIL UIT and United Incubation Hub, the final featured inspiring keynote addresses and 30 finalist teams presenting their startup pitches. Sparkles in the grand award ceremony, the top honor went to Team Smart Wheelchair, Ms. Asra Ansari, Mr. Ashutosh Mishra, and Ms. Bhumika Arya of CMP, winning a cash prize of 1,100 rupees. The competition concluded on a high note, celebrating creativity, collaboration, and the spirit of entrepreneurship. Good afternoon to one and all present here. I am Asra Ansari. I Ashutosh Dubey. And I am Bhumika Arya. We are from BSc first year CMP Degree College. We are here to present our idea, which is on wheelchairs convertible into crutches. So the problem which we faced, some disabled people face, were about architectural barriers like steps, narrow doorways, and accessible restroom. Then the second problem which they face is transportation issues. After that, they face physical challenges like they are not able to move in a crowded place, and then societal barriers like some people are not, they feel unhelpful processes. So we have a concept of wheelchair that can be converted into crutches. So crutches so that they can be easily used on stairs, on transportation, or even places. And we have a concept that we can attach a latch or a button that can convert a wheelchair into crutches. Okay, the next is impacts and benefits. So in this, the impacts of this is helpful for the people who is not be able to move on the stairs. So this is the better way to convert the wheelchair into crutches, so that they can able to and be independent to move with themselves on the stairs without any external help, and this makes them this is the better way to help themselves independently, and it helps so many ways. In so many ways they can help themselves, like this is handy and easily convertible, and give them little confidence that they can do, and it also helps it also enhance their abilities to participate in daily activities, and overall this will give the person a little more confidence toward their lifestyle, and they won't feel themselves backward and something like that. So this is really helpful for the people with the disability, and this will help them. So scope of the wheelchair convertible to crutches lies in enhancing user independence for people with mobility challenges. Adopting this wheelchair function as both a wheelchair or flat surface, as a pair of crutches for stairs or short distance. Our main ideology behind this project is that some people who are unable to walk, or they can't walk for long distances, can use this wheelchair, which is convertible into crutches, like so they don't need any help. So we end our ideology here. Thank you so much.
Thank you so much. Ekta Singh, and today I'm present here to present my innovative idea on self-healing concrete. So, firstly we have to understand that why we need this particular idea to implement in our daily life. So, we need this particular idea to implement because we saw in our daily life that there are a lot of road accidents happen due to the bad structure of the road and bad formation of bridges with using bad structure of material to form the bridges. So, for using this, we need this idea to implement. And as I seen today that the bridge of the Fafamo got blocked and this all happened with the bad structure of the bridges and roads using a bad raw materials. And what are the cure to solve or to implement this idea? So we use a bacillus bacteria. It is a special type of bacteria which we use to form when there is a formation of the cracking of the road. Then we use this bacteria because this bacteria produce a calcite by using microbial process. Then when we use this bacteria, then the cracking of the road got filled and the damage got ended. So after that we understand about what are the technical approach of it. So when we are talking about the technical approach and feasibility and viability, then yeah, of course it is feasible because we are using a MICP technology in it, and viable too because it increases the durability and maintenance cost too. Because by using it, we decrease the maintenance cost and everything what increases the cost benefits. When we are talking about the revenue stream, then by using it, we invest in our construction industry and got lot of profits, and there are lot of industrial applications too. When we are talking about the impact and benefits, then it increase the durability, reduce the maintenance cost, and increase the sustainability, and it also save the cost. And when we are talking about the future scope, then by using it, our India got a very stable and become a smart city, and increase the adoption, and our infrastructure got boosts. So at last but not the least, by using this mission, we form a stable and sustainable India by using it. Good afternoon everyone, myself Shivani Mishra and I represent my innovative idea regarding eco leather from recycled plastics. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में प्लास्टिक जो वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है फॉर अवर सॉइल एंड वाटर सिस्टम, जो कि ब्लॉक कर देता है और उसका सेल्फ डिग्रेडेशन है वो काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है, जो कि नहीं वेस्ट होता है, जो कि नहीं अपने आप इकट्ठा है. तो उसके लिए हम एक सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि उसको डिग्रेडेट ना करके उसको हम अपने जनरल लाइफस्टाइल में ला सकते हैं. उसको हम लेदर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे फैशन ब्रांड्स जैसे कि बैग्स हो गया, एसेसरीज हो गई, और जो हमारे कार का इंटीरियर होता है उसमें यूज़ हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम है हमारी, जो ग्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट है, क्राइसिस है, जैसे कि बॉटल्स हो गई, पैकेजिंग हो गई, बैग्स हो गए, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और ये डेली बेसिस पे हम जनरली यूज़ ही करते हैं, जैसे पॉली बैग्स हो गया या बॉटल्स हो गए. तो हमारे और एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए लेदर की डिमांड बढ़ती जा रही है. जैसे कि हमें जनरली छोटी छोटी चीज़ों के लिए जैसे बैग हो गया और जो डेली एसेसरीज हो गई, हमारे वॉलेट्स हो गए, उसमें लेदर यूज़ होती है. तो उसकी डिमांड को हम सस्टेनेबल लेदर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एनिमल्स की वैसे जो नेचुरल लेदर होता है वो एनिमल्स की स्किन से बनता है. तो इससे एनिमल्स की हीलिंग होती है, जो कि काफ़ी क्रुएलिटी है, तो हम उसको भी ओवरकम कर सकते हैं. So my innovative idea is low cost eco leather made from recycled plastic waste, durable, waterproof and leather like feel. उसको leather like feel
टेक्सचर एंड कलर हम बिल्कुल लेदर की तरह देंगे, जो कि नेचुरल लेदर की जैसे होगा। मेरा आइडिया वीगन लेदर से इंस्पायर्ड है, जो कि पाइनएप्पल लेदर या फिर मशरूम लेदर हो गया। इसको इनोवेटिवली इस मैनर में बनाता है कि इसमें हम वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं एक अच्छे उसके लिए, मोटिव के लिए। फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा और वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज़ में हम फैशन की ब्रांडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। ये फास्टर और चीपर होगा एनिमल लेदर के कंपैरिजन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेदर की हैजार्डस ट्रेनर्स के लिए या रिसाइकल के लिए हम क्रोमियम बेस्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है और वो वाटर एंड सॉइल को काफ़ी ज़्यादा पल्यूट करता है। इसके लिए रॉ मटेरियल जो हमारा होगा वो लो कॉस्ट प्लास्टिक वेस्ट होगा, जो कि डेली बेसिस पे हमारे नेचर को इकोसिस्टम को पल्यूट कर रहा है। ये 40 to 60% चीपर होगा जेन्युइन लेदर से। इसकी क्वालिटी कंसिस्टेंसी एडवांस कोटिंग एंड टेस्टिंग के बेसिस पे होगी। कंज्यूमर एक्सेप्टेंस के लिए हम अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं और एनजीओ से हम और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनसे हम मर्ज करके एक प्रोग्राम चला सकते हैं, जो कि हमारे इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसका यूज़ हम कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स एंड एविएशन इंटीरियर्स के लिए, स्मार्ट इको लेदर विद एम्बेडेड सेंसर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ब्लेंड्स फॉर मोर सस्टेनेबिलिटी, और एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम ग्लोबल फैशन मार्केट में। थैंक यू। Good afternoon. Myself Vivek Choke, student of MSc Chemistry, third sem. I am here to express an innovative idea about an acoustic guard remote control device. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शहरों में सड़कों के किनारे जो घर होते हैं या रूम्स होते हैं या फिर जो फ्लैट्स हैं, उनमें अधिकतर नॉइज़ पोल्यूशन की दिक्कतें बहुत होती हैं, जिनमें कि वाहनों की आवाज़ें हैं या फिर रोड पे लोग आते जाते हुए बच्चों हैं, तो इससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहाँ को। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब क्योंकि दीवारों को मोटा करना या फिर फोम्स लगाना, तो ये एक लिमिटेड और उतना सही ऑप्शन नहीं है कि मतलब इससे किया वो किया जा सके, नॉइज़ को रोका जा सके। तो इसके लिए हमें कॉम्पैक्ट और कंट्रोलेबल डिवाइस चाहिए, जो कि जो अननेसेसरी नॉइज़ है उसको कैप्चर करके और रूम को एकदम वाइड बना सके और कन्वर्सेशन क्लियर कर सके उसमें। और ये डिवाइस जो है वो दीवार में या फिर खिड़की के साइड उसे लगाना चाहिए, जिसमें दो माइक हों, एक जो बाहर से नॉइज़ जो आ रही है उसको कैंसिल कर सके और अंदर की नॉइज़ जो है फिर टॉकर अगर कुछ कह रहा है उसकी वॉइस को इन्हेंस कर सकें, बूस्ट कर सकें। और इस डिवाइस को ऐप पे या रिमोट के सहारे कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि इसके रेंज को बढ़ाया घटाया जा सके। और ये इसका डायग्राम है और लिसनिंग मोड्स। इसमें मैक्सिमम ANC जो डिवाइस है वो 2 फ्रिक्वेंसी में चेंज करके बाहर की नॉइज़ को, और जो रूम में वॉइस है उसे इन्हेंस करते हैं। मीटिंग में अगर स्ट्रॉन्ग रिकॉर्डिंग और टॉकर, जैसे जो टॉकर है और उसके साइड जो माइक है वो टॉकर के वॉइस को इन्हेंस करने के लिए और बाहर की वॉइस को सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। स्लीप लो फ्रिक्वेंसी हम रिमूवल, यदि स्लीप मोड में है तो फिर वहाँ पे हम रिमूवल या फिर लो फ्रिक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वॉइस इन्हेंसमेंट, सुपर कार्डियल ब्रेन फॉर्मिंग ब्लॉक्स ऑन द टॉकर्स डायरेक्शन। इसमें हम जो माइक है वो टॉकर के डायरेक्शन में कर सकते हैं या फिर उसे चेंज कर सकते हैं, मतलब ये पोर्टेबल है एक प्रकार से। इसमें नॉइज सप्रेशन के लिए जो DNN है वो मोस्ट पावरफुल है, मतलब इसका कोर पार्ट जो है वो DNN है, वॉइस को ब्लॉक करने के लिए रेसिडुअल बैकग्राउंड में, और डायनेमिक EQ DSM ऑफ ट्रिप्स नेचुरल स्पीच प्रोड्यूस करता है। नॉइज ब्लॉकिंग स्ट्रेटजीज में एक्टिव नॉइज कंट्रोल जो है इसका तो बेस्ट है, 1 kHz से कम वॉइस के लिए वर्क करता है, ट्रैफिक इंजन में, एंड स्मार्ट विंडो स्ट्रिप टू कैंसिल थ्रू आउट सीरियल ओपनिंग ट्रांसमिशन, एडिट आउट डायरेक्टिव शेपिंग टू क्रिएट वाइड जूम नियर डेस्क बेड। इसका यूज़ हम
स्टडी टाइम पे डेस्क पे या फिर सोते टाइम बेड के साइड में कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे वॉइस कैंसलेशन का काम कर सकें। ब्रॉडबैंड साउंड मास्किंग और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसिएंट, इसे हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसका डायग्राम यहाँ पे प्रोड्यूस है, दिया गया है, जिसमें 4 लाइट्स दिए गए हैं। ये चारों लाइट्स डॉक्टर की वॉइस को इन्हेंस करने के लिए हैं, और बाकी के जो 2 हैं वो इरर माइक्रोफोन्स हैं। वो जो बाहर से नॉइज़ आ रही है उसे कैंसिलेशन के लिए उसे कैप्चर करके एएनसी में भेजते हैं, और फिर एएनसी के द्वारा उसे रिड्यूस किया जाता है। सेफ्टी एंड कॉम्प्लियंसेस, लिमिट एंटी नॉइज एस्पियर टू सेफ एक्सपोजर लेवल्स। जो साउंड है उसे एक सेफ्टी लेवल तक ही रिड्यूस किया जाना चाहिए। एएनसी पेमेंट प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जैसे कि ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल है तो इसलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक मेजर इशू है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्राइवेसी ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग, नो ऑडियो अपलोडेड, इस डिवाइस में इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि कहीं भी कोई रॉ ऑडियो जो है वो अपलोड ना हो, और इस हिसाब से इसे प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हम इसके प्रोटोटाइप प्लान की बात करें, अगर हम इसे बनाने की बात करें तो इसमें मैक्स टू मैक्स 8 वीक्स का टाइम लगता है, अगर एक अच्छी टीम अपने पास हो। तो वीक 1 से 2 में हम लोग जो है माइक एरे या फिर डिवाइस का स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, और इम्पोजर बेसिक एएनसी पाइपलाइंस की। वीक 3 to 4 में हम बीम फोल्डिंग, इको कैंसिलेशन एंड रिमोट कंट्रोल लेवल, ये इन सब चीज़ों पे इसके मतलब 4 वर्क करते हैं। वीक 5 to 6 में इसे विंडोज या फिर वॉल्स में लगा के ट्यूनिंग रियल ट्यूनिंग करके इसे चेक करते हैं कि मतलब ये डिवाइस हमारा कितना हद तक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। वीक 7 to 8 में इसे यूज़र टेस्टिंग और मैनुअल्स के हिसाब से भेज दिया जाता है। अगर इसके पर यूनिट की कॉस्ट की बात की जाए तो हमारे क्या रहेगा, मतलब इसके सभी इक्विपमेंट्स का अलग अलग यहाँ पे बताया गया है कि कितना खर्च आएगा, बट एट लास्ट टोटल अगर देखा जाए तो $100 to $200 में इसका मतलब पूरा वो बन जाएगा। रिस्क एंड लिमिटेशंस, एंड एएनसी लेस इफेक्टिव ऑन इरेगुलर हाई फ्रिक्वेंसी और इम्पल्सिव साउंड्स। जो इरेगुलर और लेस एफिशिएंसी के साउंड्स हैं जैसे कि क्लैप्स वगैरह, इस पर ये लेस इफेक्टिव वर्क करता है। रूम रिफ्लेक्शंस, अगर रूम में रिफ्लेक्शंस हो रही है नॉइज़ की या फिर साउंड की, तो वहाँ पे वो लेस इफेक्टिवली वर्क करता है, वहाँ पे उतने सही से वर्क नहीं कर पाता। ओपन विंडोज़ या डोर्स हैं तो वहाँ पे भी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। यूज़ केसेस, इसका यूज़ हम बेडरूम्स, नियर रोड्स, स्टडी डेस्क, मीटिंग रूम्स एंड फेसिंग नॉइज स्ट्रीट, हॉस्टल्स, फ्लैट्स, इसमें यूज़ कर सकते हैं। रेंटल फ्रेंडली नॉइज कंट्रोल विदाउट हैवी कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है नियर बाई सोर्स पे, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे नॉइज पोल्यूशन रोका जा सके। मॉडिफिकेशन जनरल रूम में और सिंगल विंडो वॉल मॉड्यूल, इसे सिंगल वॉल मॉड्यूल के बेस पे तैयार किया जाता है। टेस्टिंग 2 to 3 रियल इन्वायरमेंट, इसकी टेस्टिंग अगर मार्केट में लॉन्च करने से पहले इसकी टेस्टिंग को हम 2 या 3 रियल इन्वायरमेंट में कर सकते हैं ज्योमेट्री और एल्गोरिथम के हिसाब से। प्रिपेयर पेटेंट डोसियर ऑन एवरी एएनसी बी फॉर्मिंग प्लस स्मार्ट विंडोज रिपेयर, सब कुछ हो जाता है लास्ट में, फिर इसके लिए पेटेंट कराना आवश्यक होता है। और फिर इसका एक सेकेंड डायग्राम है यहाँ पे, जिसमें 2 माइक्स हैं, 2 सीपीयू हैं और 2 स्पीकर्स दिए हैं। सिस्टम आर्किटेक्चर है, माइक है, फिर DSP स्पीकर करे, स्मार्ट विंडो पैनल, इसका जो सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग है प्रोसेस वो बताया गया है। एंड परफॉर्मेंस टारगेट जो है ये आउटसाइड नॉइज के रिडक्शन को 10 to 20 डेसिबल तक कम करता है, और स्पीच SMR इम्प्रूवमेंट, जो टॉकर है उसकी वॉइस को 6 to plus डेसिबल तक इंक्रीज करता है। और वीडियोस के फॉर्म में थैंक यू। I'm going to present about piezoelectric sensors, which are basically a kind of sensor जिसमें हम मैकेनिकल स्ट्रेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस कि हम अपनी डेली रूटीन में, डे टू डे लाइफ में इतने सारे वर्क्स करते हैं जिसमें हमारा मैकेनिकल स्ट्रेस, एनर्जी जो है हीट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो व्हाट अबाउट इफ वी कन्वर्ट दैट एनर्जी, स्टोर इट in the form of electrical energy with the help of piezoelectric sensors and utilize it for future use. We can save a big amount of energy because small changes make big impacts. So in Japan, जैसा कि हम लोग आजकल देखते हैं, वहाँ पे पेवमेंट्स बनाए गए हैं जिसमें लोग जितने फूड स्टेप्स चलते हैं उन फूड स्टेप्स से प्रेशर क्रिएट होता है, और वो मैकेनिकल प्रेशर
बाइसेप्स को या जो मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को, क्रंच बार है, बाइसेप्स पुशअप्स हैं, इन सबको अगर हम पुल एंड पुशअप्स, ये सारे प्रेशर को अगर हम कलेक्टिवली स्ट्रेस के फॉर्म में पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, मतलब कि सारे जिम इक्विपमेंट्स में हम लगा दें, तो वो सारा स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स दे रिक्वायर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जैसे कि बहुत सारे क्वार्ट्ज मटेरियल हैं, टाइटेनेट हैं, बिस्मथ के मटेरियल्स हैं, विच आर इजीली अवेलेबल। अगर हम लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो ऑफ कोर्स वी रिक्वायर एक्सपेंसिव मटेरियल, बट फॉर स्मॉल स्केल हमें ये इजीली अवेलेबल मटेरियल मिल जाएंगे। इस मटेरियल से हम सेंसर्स हर जगह लगा सकते हैं, बीट कार टायर्स, हमारी कार्स जो हैं, जो रोड्स पे चल रही हैं, टायर्स में लगातार प्रेशर जनरेट होता है, वो अगर डायनेमिक, और एक चीज़ है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स को स्टैटिक नहीं डायनेमिक मोशन चाहिए, तो जब कार्स रोटेट करेंगे उसके साथ वो सेंसर भी प्रेस होगा और लगातार उसके साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। नॉट ओनली दिस, अगर हम योगा मैट्स बनाएं जहाँ पे लोग योगा करेंगे और फिर उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे ट्रॉली बैग्स जो हम लेके जाते हैं जब, तो उनके टायर्स पे प्रेशर जनरेट होता है, अगर हम उस प्रेशर को पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर से कनेक्ट कर दें, देन वी कैन गेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़े अमाउंट में ही कन्वर्ट होगा, बट वी कैन गेट इनफ टू चार्ज अ मोबाइल फोन और यूज इट इन द फॉर्म ऑफ पावर बैंक। ऑफ कोर्स एक और हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट बोर्ड। जब हम स्मार्ट बोर्ड पे पेन यूज़ करते हैं तो वी क्रिएट सम स्मॉल प्रेशर ऑन दैट। अगर हम उस बोर्ड में ओवरऑल एक फ्लैट सरफेस पे सेंसर लगा दें, तो जब हम उस पर प्रेस करेंगे तो वो सारा प्रेशर एक्यूमुलेट होगा और एक बोर्ड को चार्ज करने के लिए, एक लैपटॉप चार्ज करने के लिए इनफ हो सकता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इस तरीके से हम कई सारे इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। एक है जॉगिंग शूज़। जब हम जॉगिंग करने जाते हैं तो हमारे शूज़ में अगर वो सेंसर्स लगे होंगे और हम जॉगिंग करने जा रहे हैं तो हमारे फुट स्टेप्स पेवमेंट में तो हम नहीं बना सकते, बिकॉज इंडिया में वेदर कंडीशन एंड रोड कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो व्हाट अबाउट अगर हम अपने शूज़ को ही इक्विप्ड कर ले सेंसर से, तो वो सारी एनर्जी स्टोर हो सकती है। लेटर ऑन वी कैन यूज़ इट फॉर आवर डेली यूज़ इन द फॉर्म ऑफ पावर बैंक और एनी अदर फॉर्म ऑफ चार्जिंग लैपटॉप्स और एनी कंप्यूटर्स, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो स्मॉल चेंजेस वी कैन क्रिएट बिग इम्पैक्ट्स। तो हमारे लिए ये एक बहुत इनोवेटिव आइडिया होगा अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें और इससे ये सारे इक्विपमेंट्स डे टू डे लाइफ में बना सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। थैंक यू। I am here in front of you to presenting my innovative ideas, correcting posture chair with heating pad for back pain relief. जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादा देर तक काम करने से, चेयर पे बैठे बैठे 8 से 10 घंटे हम काम कर रहे हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो बहुत लोगों को बैक पेन हो जाता है, शोल्डर पेन, नेक पेन होने लगता है। तो उसके लिए कोई एक ऐसी चेयर होनी चाहिए जिसमें एक मसाजर हो, हीटिंग पैड हो या फिर सेंसर लगा हो जो उसके पोस्चर को करेक्ट कर सके, तो उसको सेंस कराए बाय नोटिफिकेशन। The silent damage of poor posture in everyday life। तो उसमें हम देखते हैं कि chronic pain होने लगता है, persistent back, neck and shoulder pain from spinal misalignment and muscle strain हो जाता है, जो reduced energy जैसे poor circulation होता है ब्लड का और prolonged muscle tension बना रहता है, जिसकी वजह से fatigue और productivity डिक्रीज हो सकती है और ज़्यादा लंबे समय तक अगर काम करते हैं तो फिर ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है फॉर अ लाइफ। स्मार्ट सोल्यूशन फॉर बैक एंड स्पाइन केयर। उसके लिए इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, तो एक चेयर होगी जिसके लूबर एरिया मतलब लोअर बैक रीजन पे एक हीटिंग पैड अटैच होगा जो एक स्मार्ट कनेक्टेड डिवाइस से चलेगा और वो आपके पोस्चर को करेक्ट करेगा बाय नोटिफिकेशन या फिर बटन के थ्रू। और ये नेक पेन और शोल्डर बैक पेन को भी रिलीव करेगा। और इस चेयर का यूज़ एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे कर सकते हैं, जैसे ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, जहाँ पे स्कॉलर्स काम करते हैं 8 से 10 घंटे,
के लिए ये बहुत ही यूजफुल है